आज आईसीएसई बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है और मेधावी बच्चों को आज सम्मान भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में लखनऊ के आज एक निजी स्कूल में जहां बच्चे 99.80% नंबर लेके आए हैं, वहीं 99.25% नंबर लाकर अपने स्कूल का और अपने लोगों के बीच में एक नई प्रतिभा और एक नई पहचान को बता रहे हैं। जहां बच्चे लगातार इंजीनियरिंग और मेडिकल साइंस की तरफ पढ़ने के इच्छुक हैं, वहीं कुछ बच्चे अब ऐसे भी हैं जो पॉलिटिक्स को अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। उनको लगता है कि अब पॉलिटिक्स भी एक ऐसा कैरियर है जिसमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी और बहुत ज़्यादा चेंजेस लाया जा सकता है। इन्हीं सब बीचों के बीच में आज हम लोग मौजूद हैं सिटी मॉन्टेसरी स्कूल पे और वहाँ जानेंगे उन बच्चों का किस तरह से उन्होंने सक्सेस की है। और उन सब बच्चों से एक चीज़ निकल के आई है कि रेगुलर अगर आप पढ़ना नहीं छोड़ते हैं तो कामयाबी आपके कदम की। हमारे साथ आईसीएसई टॉपर 99% प्रज्ञा यादव है। बेटा आज कैसा आज कैसा फील हो रहा है? So I feel very satisfied today because I have achieved my aim of being the national topper, and also I feel very happy because I've been able to fulfill the expectations of my teachers and my parents. What is your future about the work? What do you think about the future? Sir, I want to become an IAS officer and work in diverse fields for my country. Why you select the UPSC? Sir, I have selected UPSC because I am a person who is interested in dealing with people, in working for people, and I feel that UPSC provides me a way to work in diverse fields for the people. हमारे साथ आईसीएसई बोर्ड पे सब 98 प्लस वाले, ठीक है? तो सबसे पहले हम 98 प्लस वालों से उनका अपना परिचय दें। अपना नाम? Arnavi Dwivedi, I've got 98%. Aishwarya Sharma and I have got 98%. Akshati Dwivedi and I've got 98.4%. आप दोनों में एक सवाल पूछेंगे। बेटा जो मतलब तैयारी के लिए लगी और इस बात के लाने के बाद मतलब क्या करेगा? Firstly, I would like to answer the second question. For future, I would like to clear IIT and be a software engineer. And for the strategy, I would say that during the summer vacations, you have to consider it as a preparatory leave, and you can cover the syllabus of maths, English, history, geography in that. And even you have to study for the whole year since day one, because at the end we cannot cover the whole syllabus. That's all. And I would My name is Aishwarya Sharma and I would suggest that not only studies but health is as much as important in the preparation journey. We have to look after our health also, because during the board examinations not only our studies is tested but also our health, the pressure which we have to handle during the examinations. Thank you. Oh, what is the future? Yes, please. What is your future plan? And I want to become a researcher in the field of astronomy. Thank you. My name is Arnavi. I've got 98%. I think revision is the most important thing. How many times we revise is very important. And I think board is a game of representation. So we have to follow our teachers. We have to do as much as practice we can do and revision. And I want to become an IAS officer. I have to clear engineering and then I'll go for UPSC. But why are you clearing the engineering after that UPSC track? Engineering will help me in sharpening my mind and broadening my thought process, and that will help me in UPSC. अपना नाम पहले हम बता दीजिएगा, कितने परसेंट है और फ्यूचर में क्या है? हिंदी में लोग ज़्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि सभी लोग समझ ज़्यादा दूर तक पहुँचेंगे आप, ठीक है? हाँ, हेलो, ये नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम करण है और मेरे 98.6% है। तो क्या फ्यूचर में करना चाहते हैं और क्या गोल है? मुझे मेडिकल फील्ड में या तो रिसर्च करनी है या फिर कोई ऐसा डॉक्टर बनना है जो कोई मेजर जैसे कैंसर जैसी बीमारियों को सही कर सके। ये मुझे बहुत एक ग्लोबल लेवल पे प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। मेरा नाम अर्जुन है और मेरे 98.2% आए हैं। आप क्या करना चाहते हैं? फ्यूचर में क्या गोल है? मैं फ्यूचर में एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ मेनली, और न कि अपनी फीस बढ़ा के, और मैं बल्कि बहुत कम रेट में बहुत ज़्यादा समाज की सेवा करना चाहता हूँ। और मैं बायो मैंने इसलिए भी लिया जिससे कि हम लोग अपने शरीर के बारे में जानने को मिलता है और हम लोग अपने दिनचर्या ठीक कर सकते हैं इसके बाद। मेनली तो मैंने जैसे कार्डियोलॉजिस्ट सोचा, क्योंकि बहुत लोग को हार्ट की बीमारी होती है लेकिन इतने महंगे इलाज होते हैं कि वो लोग जा नहीं पाते। तो अगर हम लोग कम रेट में हार्ट का इलाज करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्योर होते हैं।
आप बताइए। मेरा नाम लक्ष्य पांडे है, मेरे 98.6% आए हैं। मुझे डॉक्टर बनना है और सोसाइटी के जो इम्पॉवरिश्ड लोग हैं उनकी हेल्प करनी है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपने न्यूरो की प्रॉब्लम्स होती है, नर्व्स की, उन्हें आइडिया नहीं होता है। मुझे उनकी हेल्प करनी है और उनके फ्यूचर के लिए। आप ऐसी फील्ड चुनी है क्योंकि न्यूरो एक ऐसी फील्ड है जिसके बारे में ज्यादातर लोग जानते नहीं, हाँ। और जब तक वो जांच ना हो तब तक तो क्या लगता है आप लोग सब तीनों लोग एक साथ दोस्त हैं सब लोग? हाँ जी, मुझे लगा कि ये क्या नव्या शुक्ला अभी पूरा कितने परसेंट मार्क्स? 98.2। तो बेटा क्या करना चाहते हो फ्यूचर में, किस तरह करते हैं, क्या करना चाहते हो? मैं फ्यूचर में डॉक्टर बनना चाहती हूँ। आई वांट टू बी अ सर्जन। तो अभी आपने जो तैयारी की किस तरह से की और आगे किस तरह तैयारी करेंगे? कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर दिन भले ही 15 मिनट या फिर आधा घंटा, मगर एटलीस्ट बुक उठा के देखना चाहिए। कभी कभी बहुत ओवरवेलमिंग होता है जिससे लगता है कि नहीं पढ़ सकते हैं, मगर आई थिंक कि अगर बुक उठाकर सिर्फ फॉर्मूलाज भी रिवाइज कर लिया या कंसेप्ट एक बार चेक कर लिया तो उतना भी बहुत है। मगर अगर हम लोग एक भी दिन पढ़ते नहीं है तो फिर वो साइकिल ब्रेक हो जाती है, फिर दोबारा पढ़ने का मन नहीं करता है। और आप बताइए। वैष्णवी विसेन, तो आज विजय पत्र मास्टर 98.6। अच्छा, तो आगे क्या करने का इरादा है? मैं एक इंजीनियर बनना चाहती हूँ और मेरा सपना IIT कानपुर में जाना है। तो किस तरह की इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, एरोनॉटिक्स में या किस में? मैं कंप्यूटर साइंस में जाना चाहती हूँ और इफ पॉसिबल तो मैं कंप्यूटर साइंस में भी जो स्पेस टेक्नोलॉजी में जाते हैं वहाँ पे जाना चाहती हूँ। तो किस तरह से आपने ये तैयारी की और आगे फ्यूचर में किस तरह तैयारी करना चाहेंगे और क्या ग्रुप रहेगा? मेरा बस यही है कि कंसिस्टेंसी बना के रखें। एक भी दिन ऐसा ना जाने दें जब आप टाइम वेस्ट करें। सबसे पहले टाइम की वैल्यू को समझें, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप थोड़ा सा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अगर आप 1 मिनट वेस्ट कर रहे हैं तो आप लाखों बच्चों से पीछे जा रहे हैं, क्योंकि आज के टाइम में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो बस यही है कि अपना टाइम ना वेस्ट करें, कंसिस्टेंसी बना के रखें और मेहनत करते रहें। बस यही है, और अपनी वैल्यूज़ को कभी ना भूलें। मेरा नाम मनन त्रिपाठी है, मैं सिटी मॉन्टेसरी स्कूल गोमती नगर कैंपस 1 में हूँ और मेरे 97.75% हैं क्लास 12 को। अच्छा, तो आप 12th के बाद आप क्या करना चाहते हैं फ्यूचर में और किस तरह करना? आज 12th के बाद तो एज इन जैसे कईयों का आपने देखा होगा, पीपल वांट टू बिकम इंजीनियर्स, वांट टू बिकम डॉक्टर्स। आई एम अ लिटिल डिफरेंट। आई वांट टू जॉइन पॉलिटिक्स। आई वांट टू बी इनटू द गवर्नमेंट पार्ट ऑफ इंडिया एंड आई एस्पायर टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वन डे। तो प्रधानमंत्री की तरह आप भी जो है राजनीतिक में आना चाहते हैं। पॉलिटिक्स क्यों आपने सेलेक्ट की? क्योंकि लोग पॉलिटिक्स को सबसे कम सेलेक्ट करते हैं, इसलिए। पॉलिटिक्स को लोग सबसे कम इसलिए सेलेक्ट करते हैं क्योंकि इसमें सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो पैदाइशी सिलेक्टेड हो। तो मुझे उनसे अलग रहना है, मुझे अपना सिलेक्शन खुद करना है इस पॉलिटिक्स में, और देखते हैं आगे अगर इस स्तर तक पहुंच पाए तो कि देश को कुछ दे पाए तो पूरी कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ ऐसा करने की कि हमारे भी नाम इतिहास में हो। कैसे आप मैनेज करोगे? भ्रष्टाचार से ज्यादा भ्रष्ट बुद्धि है। अगर भ्रष्ट बुद्धि सही हो गई तो भ्रष्टाचार अपने आप सही हो जाएगा। तो बुद्धि सुधारनी पड़ेगी सबसे पहले, और सुधरी बुद्धि के लोग जैसे ही पहुंच जाएंगे भ्रष्टाचार अपने आप पढ़े लिखे पॉलिटिक्स में जाएंगे तो पढ़े लिखों को भी पॉलिटिक्स समझ में आएगी, और जो अभी तक उस स्तर तक नहीं पहुंच पाए हैं उनको वहां तक पहुंच भी पाएंगे। सर, एक चीज और की बात सिर्फ पढ़े लिखे होने की नहीं होती है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है इस पर कई लोग सवाल उठाते हैं, जो भी है उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो उनका तरीका है, जो उनके सोच है, जो उनकी थॉट है, जो उन्होंने काम किया है, बगैर पढ़े लिखे उतने स्तर तक होने के बजाय जो बड़े बड़े लोग हैं उन्होंने जो कर दिखाया है, वो जो ग्रास रूट लेवल से उठ के जो उन्होंने कर दिखाया है, वो बड़े बड़े पढ़े लिखे नहीं कर पाए। तो पढ़े लिखों का भी होना जरूरी है, लेकिन बुद्धि होना और प्रैक्टिकलिटी होना ये सबसे ज्यादा जरूरी है। मेरा नाम उत्सव है, मैं CMS GN2 से हूँ और मेरे बोर्ड्स में ISC बोर्ड्स में क्लास 12 में 98.25 आए हैं और JEE मेंस में 99.27% आए हैं। तो JEE में आपने कंपटीशन बीट किया, तो किस तरह से आपके अपनी स्टडी दोनों को एक साथ जोड़ के रखा और किस तरह इसको बीट किया? अब आपको स्टडीज को अलग अलग नहीं देखना है, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सेम ही है, थोड़ा बहुत कोर्स का डिफरेंस है, पर जब आप किसी चैप्टर के डेप्थ में घुसेंगे तो उससे आपकी JEE में भी हेल्प होगी और बोर्ड में भी हेल्प होगी। बस बोर्ड में ये होता है कि आंसर को थोड़ा सा ऐसे मतलब
जेई एमसीक्यू बेस्ड है, उसमें सिर्फ टिक लगाना है। बोर्ड में आपको थोड़ा सा लैंग्वेज में लिखना आना चाहिए कि आप आंसर को अपने प्रेजेंट भी कर पाए, आपको सिर्फ नॉलेज नहीं उसको प्रेजेंट करना भी आना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आप स्कूल के सपोर्ट के साथ रहेंगे तो स्कूल में आपको सिखाया जाएगा कि आपको आंसर फ्रेम भी कैसे करना है। आप अपना थोड़ा सा बताइए। Sir, my name is Vatsalya Shukla and I am from GN2 campus CMS and I have scored 98.25 in my class 12 examination तो आपने जेई में आपका and 97% आया था JEE में। तो जेई में किस तरह आपने तैयारी की और आप जेई सिलेक्शन के बाद किस तरह से किस स्टेज में जाना चाहेंगे, कंप्यूटर साइंस में, एयरनॉट? सर स्टार्टिंग फ्रॉम JEE जर्नी तो मैंने अपनी जैसे एजुकेशन थी वो JJ से प्राइमरी पढ़ी वहाँ से एंड उसके बाद जैसे जो भी टॉपिक्स थे उनको आई वेंट डेप इनटू दैट टॉपिक एंड ऑल्सो PYQs प्रैक्टिस किए सारे और जितने भी मॉड्यूल्स थे स्कूल से जो मिले थे वो किया। प्लस हमारे टीचर्स ने हमें गाइड किया, जैसे बहुत सारे टीचर्स थे हमारे स्कूल में जिन्होंने हमारे डाउट सॉल्व किए और साथ ही में जितने हमारे वो थे क्या न्यू कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस किए, एडवांस टॉपिक्स पढ़ाए हमें, जिससे बहुत हेल्प हुई हमारी JEE में। एंड टॉकिंग अबाउट कि मेरा फ्यूचर प्लान क्या है, डेफिनेटली आई वांट टू ट्राई इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड आफ्टर दैट आई वांट टू गो फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। मेरा नाम देवस्वन नारायण दुबे है। और इस बार कितने परसेंट नंबर आपके? मेरे 99.8% आए हैं ICSE 10th रिजल्ट। most probably he is the topper of India. क्या क्या रहा था इस कामयाबी का? किस तरह से आपने पढ़ाई की और किस तरह लोगों को इंस्पायर करना है? मुझे लगता है कि लोगों को बस अपने स्कूल एग्ज़ाम में जैसे पढ़ते हैं उनमें अपनी गलतियों को पहचानना, उनका सुधार करना ज़्यादा ज़रूरी है। कि जो गलतियाँ स्कूल एग्ज़ाम में होती हैं उन्हीं का सुधार कर लेंगे तो वो मेन एग्ज़ाम में नहीं होती हैं। तो फिर वो बहुत कुछ इतने स्कूल एग्ज़ाम होते हैं कि वो सारी गलतियाँ में रिकॉग्नाइज हो ही जाती हैं। अच्छा, तो आगे क्या भविष्य में क्या करते हैं? मैं इंजीनियरिंग की तरफ मेरा अभी रुझान है और मैं देश का नाम रोशन करना चाहता हूँ इसी क्षेत्र में। इंजीनियरिंग में किस तरह के आप टेक्नोलॉजी में जाना चाहते हैं? मेरा अभी मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर साइंस में ही मेरा ऋषि राज शुक्ला आपके बोर्ड में एग्जाम में कितने परसेंट? 99.25%। पूरा क्या राज है इस कामयाबी का और किस तरह से इसका पेरेंट्स या टीचर्स दोनों ही मेरे लिए इक्वल इम्पोर्टेंस है और केवल उन्हीं की वजह से और कोई भी इसमें कोई सीक्रेट नहीं है। केवल मैम है, टीचर्स है CMS के, पेरेंट्स हैं मेरे, वही मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है इस रिजल्ट के लिए। किस तरह से आपने तैयारी की और कैसे तैयारी मैंने अराउंड 10 to 12 आवर्स की डेली स्टडी करी एंड अपार्ट फ्रॉम दैट स्कूल में मैंने डाउट्स बहुत ज़्यादा पूछे और इनफैक्ट टीचर्स, मैं ह्यूमैनिटीज सेक्शन से हूँ तो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव रहे। मैं रात में लाइक 11 o'clock 12 o'clock आई रिमेंबर आस्किंग मैम एंड आई रिमेंबर गेटिंग हर रिप्लाई विद इन 15-20 minutes. So that has been one of the most important factors to my success today, I believe. My name is Zainab Fatima. I'm from the Aliganj branch of City Montessori School and I scored 99.75 percentile. I am from the humanities stream and it is because of the indispensable guidance of my teachers, my principals and my parents that I have been able to perform so well. जो आपकी पढ़ाई का जो राज है क्या है और किस तरह आप इस कामयाबी में? I've always been a disciplined student. I always tried to maintain a strict schedule. I gave equal importance to all my subjects, especially English because that was something that most group students in both struggles with. आगे फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं? I'll be appearing for the CLAT examination 2027 and I aspire to be a lawyer and judge. Zehra Fatima. Zehra Fatima. अच्छा, इस क्लास में बेटा Class 10, ICSE. अच्छा कितने परसेंट आ गया? 99.80. तो बेटा क्या सक्सेस राज है आपका इस कामयाबी का? I would say studying thoroughly, understanding concepts so that I could answer the competency focused questions. इस बार के पेपर्स थोड़े ट्रिकी आए थे तो कॉन्सेप्ट्स को सही से समझा, that is why I was able to answer correctly. बेटा आगे करने के बाद क्या फ्यूचर में करने का इरादा है? I aim for IIT. I want to become an engineer in future. तो किस फील्ड में इंजीनियरिंग किस फील्ड में करना चाहते हो? कंप्यूटर साइंस? Computer science.